कल तक का पार्ट क्लियर है सबको? कल तक का पार्ट क्लियर है? कुछ हमने क्लासिफिकेशन किया था टाइप ऑफ मटेरियल पे, कंडक्टर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था चार्ज के बारे में, इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था चार्ज के बारे में। आज चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज। राइट ऑन, राइट ऑन। अच्छा एक चीज और, थ्रू आउट द सेशन आई डिक्टेट यू द नोट्स along with the जो भी हमारा कंटेंट चलेगा, मैं नोट्स डिक्टेट करता जाऊंगा सो दैट यू कैन राइट इट साइमल्टेनियसली। ऑलराइट, सो राइट ऑन सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज of electric charge, basic properties of electric charge, ठीक है। basic properties of electric charge, number one additive nature, additive nature, additive nature। अभी additive nature क्या होता है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा स्लोली डिक्टेट करूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कभी ऐसा लगता है कुछ चीज मिस हो जाती है या थोड़ा सा फास्ट हो गया तो जस्ट लेट मी डाउन हो जाओ। हम कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर, पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर। अभी एडिटिव नेचर क्या होता है? एडिटिव नेचर इज वेरी सिंपल, यानी कि अगर किसी सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ चार्जेस हैं, किसी सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ चार्जेस हैं, मैंने कहा कि मेरा ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और इसमें कुछ चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। और हर चार्ज की कुछ वैल्यू है, हर चार्ज की कुछ वैल्यू है। Q1 की वैल्यू है +3e, Q2 की वैल्यू है -2e, Q3 की वैल्यू है +4e, Q4 की वैल्यू है -6e। सो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में डिफरेंट चार्जेस हैं। तो मैंने अगर तुमसे ये पूछा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दैट सिस्टम, what is the total charge of that system, so the total charge of that system will be q1 plus q2 plus q3 plus q4. This is the additive nature of the charge, this is the additive nature of the charge। यानी कि अगर किसी सिस्टम में आपको नंबर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो चार्जेस को ऐड करके। so what will be the total charge here? That will be 3 minus 2 plus 4 minus 6 e। 4 minus 6 is -2, -2 -2 -4, 3 -4 -1e. So this is the total charge. -1e is the total charge in this system. So just write on the point, write on the point. The total charge of the system, write on the point, the total charge of the system is algebraic sum, is algebraic sum, the total charge of the system is algebraic sum of individual charges, algebraic sum of individual charges located at different points, located at different points inside the system, inside the system। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। The total charge of a system is the algebraic sum of all individual charges, of all individual charges located at different points inside the system, located at different points inside the system। Next point, next point, if a system contains, if a system contains, if a system contains charges, if a system contains charges q1, q2, q3 and so on up till qn, if a system contains charges q1, q2, q3 dot 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 up till qn,
then its total charge Qt, then its total charge Qt is Q1 plus Q2 and so on up till Qn. So this is the first property, basic property, which is additive nature. Additive nature of electric charges. Additive nature of electric charges. ठीक है? Is the speed pace fine? Yes, sir. ठीक है. Write on next property. इसको रब कर रहा हूँ मैं. इसको रब कर रहा हूँ. Next property. Next property. Quantization of charge. Next property number second. Quantization of charge. Quantization of charge. अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? यहाँ पर आप लोग सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए. सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए. स्मॉलेस्ट चार्ज, पॉइंट नंबर 1. स्मॉलेस्ट चार्ज Q, smallest charge Q that can exist independently. Smallest charge Q that can exist independently is charge on one electron. Is charge on one electron, and the value of one electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. अब ये पॉइंट बोल क्या रहा है समझते हैं. ठीक है. स्मॉलेस्ट चार्ज Q that can exist independently. Independently exist करता है is the charge on one electron. हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है. हमने एक चीज देखी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्लास 10th में एक चीज देखी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि ये मेरा कंडक्टर है. ठीक है. कंडक्टर में करंट पास हो रही है. करंट पास हो रही है. मैं ये बोल रहा हूँ इस कंडक्टर में करंट तभी आएगी जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो कर रहे हैं, ये फ्लो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. तो तुमने यहाँ से देख के बता दिया. मैंने तुमसे पूछा अच्छा बताओ बेटा इसमें चार्ज कितना है, तो तुम बोलोगे सर चार्ज जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है. चार्ज जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर. हम बोलो बिल्कुल सही. ठीक है. बहुत बढ़िया. यानी कि मैं इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. बात समझ में आई? अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. Smallest charge Q that can exist independently. इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्ट करता है वो 1e ही होता है. 1e ही होता है. यानी कि कोई अगर तुमसे ये बोले कि इसके अंदर 2.5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. कभी ऐसा हो सकता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, या किसी ने बोल दिया 99.8 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. हाँ, या तो 99 जाएंगे या फिर 100 जाएंगे, क्योंकि ऑल आर समेशन ऑफ 1e. 1e plus 1e plus 1e plus 1e, and this 1e can exist independently. ये independently exist करता है. बात समझ में आया? ये independently exist करता है. This is electron and charge on one electron exist independently. अभी हम क्वांटाइजेशन पे नहीं आएंगे. क्वांटाइजेशन बेसिकली यही है. तो अभी तुमने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्वार्क्स बोलते हैं. कहीं तुमने सुना होगा केमिस्ट्री में देखा हो E/3 या 2E/3 है ना. ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे हैं. लेकिन तुम ये बोलोगे कि सर ये तो 1/3 आ रहा है, ये 2/3 आ रहा है. दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये डिपेंडेंट होते हैं. इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट था. इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट करता है. इज द पॉइंट क्लियर? अब क्वांटाइजेशन पे आते हैं. नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन. नाउ इट विल बी क्लियर. क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं. ठीक है. क्वांटाइजेशन क्या होता है सर? राइट डाउन the quantization of electric charge. Next point number 2. The quantization of electric charge means that total charge, quantization of electric charge
means that total charge ब्रैकेट में लिख लेना q, ब्रैकेट में लिख लेना q, total charge q of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge ये जो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है ना वो यही है टोटल चार्ज से फिर रिपीट करना है क्या अभिनव? टोटल चार्ज Q of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge yeah, basic quantum of charge, and basic quantum of charge is nothing but 1 electron. यही होता है. तो यानी कि मैथमेटिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बोलता है Q इज इक्वल टू, या कैपिटल Q से भी कहीं डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू NE. Q is equal to NE. This is the meaning of quantization of charge. अब मैं वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियरली बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे वही तो इसका टोटल चार्ज होगा. तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. हमने कहा नहीं सर, एक चार्ज मेरा भी होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी होना चाहिए. ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब यहाँ पर जो टोटल चार्ज आ गया वो कितना आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन आ गया. यानी कि चार्ज is always an integral multiple of this basic charge. This is the basic quantum of charge. एक इलेक्ट्रॉन. This can be written as 3e, can be written as e plus e plus e. यही चीज हमने यहाँ डिस्कस की थी. You cannot have a charge 1.5e. You cannot have, because this n is an integer. And it can have values from minus infinity to plus infinity. इसका मतलब चार्ज भाई अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन आएगा. इसका मतलब Q कैन हैव एनी वैल्यूज, 1e minus 1e, 2e minus 2e, or plus minus 3e, plus minus 4e, and so on. So this means the quantization of charge. This means the quantization of charge जिसमें n is the number of electrons. Under that system. उस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n बताता है. Is the point clear to all? Quantization? Yes sir. ठीक है, अगर किसी को डाउट रहता है तो जस्ट पूछ लेना, है ना. एक क्वेश्चन हो जाए इस पे, राइट डाउन. एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए. ये क्या हो गया? कोरोना कहाँ से खुल गया? ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन. How much positive and negative charge? How much positive and negative charge? How much positive and negative charge? How much positive and negative charge is there in a cup of water? Is there in a cup of water? सर ये कैसा क्वेश्चन है? भाई.
आर यू पीपल ट्राइंग इट? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक कप ऑफ वाटर में होगा। एक कप ऑफ वाटर में होगा, ठीक है। एक कप ऑफ वाटर में, सर ये मेरा कप, ठीक, चैंपियंस का कप। इस कप में कितना पानी है, कितना पानी है, तो हमको क्वेश्चन में पानी दिया नहीं कितना पानी है, ठीक है। तो सर आप म्यूट हैं। नाउ इज द वॉइस कमिंग? यस सर। हमने मान लिया कि इसमें इसमें वाटर जो है उसका वेट तो दिया नहीं है, वेट तो दिया नहीं है। चलो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 250 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, 250 ग्राम ऑफ वाटर। लेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब तुमको एक चीज पता है, तुमने एक मोल कंसेप्ट में एक फंडामेंटल पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट में एक फंडामेंटल पढ़ा होगा, क्या कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18। यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 18 ग्राम ऑफ वाटर में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 into 10 to the power 23 molecules of water. Is this statement clear to all? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस सर। तो हमने हमने क्या लेट किया है, 250 ग्राम ऑफ वाटर। हमारा ये जो वाटर है ये कितना है, 250 ग्राम ऑफ वाटर है। तो यानी कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.023 into 10 to the power 23 upon 18 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.023 into 10 to the power 23 divided by 18 था 250 ग्राम के लिए, मल्टीप्लाई बाय 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इतने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, इतने मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। अब मैं थोड़ा सा पानी के मॉलिक्यूल्स अलग से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। हम सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं क्योंकि अजम्पशन पे दुनिया चलती है ना। ये मेरा एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। कितने भाई, 10 की पावर पता नहीं कितना कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस ग्लास के अंदर है, इस ग्लास के अंदर है। अब मैं एक बात करता हूं कि एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूं पानी का, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूं, तो एक मॉलिक्यूल वाटर का, वाटर का मतलब होता है H2O, वाटर का मतलब होता है H2O। H2O का मतलब, इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 10। 10। ऑक्सीजन पे 8, हाइड्रोजन पे 2। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल पे 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है। और यहाँ टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये। तो मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स विल बी दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10, दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10। पहले मुझे सबको बताओ, क्या आप लोगों को यहां तक पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है? यस सर। यस। सबको क्लियर है? यस सर। अब एक बात बताओ, ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन में पूछ रहा था, you need to calculate total charge on a cup of water, a total charge on cup of water। हमने मान लिया कि हमारा जो कप ऑफ वाटर है उसका वेट है 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जब मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जाए हमको, तो हम बता सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा तभी हम चार्ज निकाल पाएंगे, चार्ज हम तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आई हैड अ कांसेप्ट फ्रॉम मोल कांसेप्ट कि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर will have Avogadro number of molecules, will have Avogadro number of molecules। इसका मतलब ये हुआ 1 ग्राम ऑफ वाटर will have Avogadro number upon 18। इसका मतलब हमने ये माना कि हमारा जो वाटर है वो टोटल 250 ग्राम का है,
तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स, तो यही चाहिए था ना, कितने मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये टोटल इतने मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई बाय 10, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके अंदर। अब जब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं तो तुम चार्ज नहीं करा सकते हो, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, by quantization of charge, you know charge q is equal to n into e, q is equal to n into e, ये n ही तो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये n ही तो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, we just need to multiply e into the value of e, you know the value of e, 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19, the answer is 1.33 into 10 to the power 7, correct है श्रेयस, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, ये कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है 8.36 into 10 to the power 24, 10 to the power 24, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power 25, when you multiply it by 10 तो ये हो जाएगा 10 to the power 25, 10 to the power 25, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमको चार्ज पूछा है, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना आएगा 8.36 into 10 to the power 25 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19, answer will be 1.33 into 10 to the power 7 coulomb, 1.33 into 10 to the power 7 coulomb। अभी क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, क्या है वो बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि इसमें इतना चार्ज है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ टोटल चार्ज कितना आएगा, तो क्या मतलब है, तुम थोड़ा कंसेप्ट में समझा दिया है कि नहीं, लॉजिक सर इसको नोट करना है क्या सर? नोट कर लो। ओके सर। नोट नहीं किया अभी? कर लिया सर। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। डन, ओके, रब कर दूं इसको, ठीक। Right, next property is conservation of charge. Number 3 is conservation of charge. Next property is conservation of charge. ठीक है, पहला एडिटिव नेचर था, दूसरा क्वांटाइजेशन था, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पहले जो बातें होती थी, है कि नहीं, पहला लॉ यही था कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है कि नहीं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो वहां से एक फिर डेफिनेशन और निकल के आई, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. The same concept goes with conservation of charge. Write down conservation of charge. The total charge of an isolated system remains constant. The total charge of an isolated system remains constant. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल ले लें, यूरेनियम
235 92 यूरेनियम 235 92 को तुमने बम्बार्ड किया 3 न्यूट्रॉन से, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन से तुमने क्या किया, इसको बम्बार्ड किया, नहीं 3 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन से, 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवा दो यार, काम करो, 1 न्यूट्रॉन से करवाओगे तो ठीक है, 1 N0, 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया। आई थिंक क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन, है ना। 1 न्यूट्रॉन से जब इसको बम्बार्ड कराते हैं तो ये यूरेनियम जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, क्रिप्टॉन और बैरियम, क्रिप्टॉन और बैरियम, बैरियम प्लस क्रिप्टॉन, बैरियम इज 56 एंड क्रिप्टॉन इज 46 सॉरी। नेक्स्ट, जब ये यूरेनियम ब्रेक होता है बैरियम और क्रिप्टॉन में तो 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज करता है, इट रिलीजेस 3 न्यूट्रॉन और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है 92 प्लस 0 इज 92, यहाँ पे जो टोटल चार्ज है, अच्छा टाइम खत्म हो गया, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, रीजॉइन क्विकली, क्विकली रीजॉइन करना है ना विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस सर।